میں عطاء الرحمان ہوں۔ میں ہوں محمد علی ناصر۔ میں ہوں سرزمین اولیاء ملتان سے دلزیب آکاش۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ ABN نیوز پر پروگرام قوم کی سوچ دیکھ رہے ہیں۔ میں عطاء الرحمان ہوں۔ ناظرین آپ کو بتائیں، سال 2024 جو ہے وہ گزر گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سال 2025 کے شروعات دن ہے۔ تو آج ہم راولپنڈی میں آئے ہوئے ہیں، عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سال 2024 میں جس طرح سیاسی تناؤ ایک ہائپ رہی، اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے معاشی حالات کی تو مہنگائی بھی کافی زیادہ رہی۔ تو سال 2025 سے کیا امیدیں ہیں؟ کیا مہنگائی کم ہوگی؟ جو معیشت ہے وہ پاکستان کی مستحکم ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی تناؤ ہے اس میں بھی کمی آئے گی یا نہیں؟ تو آئیے عوام سے بات کرتے ہیں۔ سال میں زیادہ مہنگائی کے چانس ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ گورنمنٹ عوام کا بالکل خیال نہیں کر رہی، بالکل۔ اور گیس کے بل بھی آ رہے ہیں، بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے، کسی قسم کا۔ اور اس کے علاوہ جدھر بھی دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ تو رب کا کرم ہوگا نا جی، انشاءاللہ ہمارے بسان ہو۔ یہ ہمارے سیاسی لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائے، جو جھوٹی قسمیں قرآن چاہتے ہیں آپ کا یہ کام، ووٹ لینے آتے ہیں تو بڑے مظلوم ہو جاتے ہیں کہ ایسا بندہ مظلوم ہے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے کام کریں گے۔ بعد میں جب ووٹ لے لیتے ہیں، سیٹ مل جاتی ہے، پھر کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ جب کسی کاغذات پہ کسی سائن کرانے جاؤ تو کہتے ہیں گھر پہ نہیں ہے جی، آج فلاں جگہ گئے، فلاں، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے یہ لوگ۔ بندہ رر رہا ہے، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے وہ رر رہا ہے، روٹی کے لیے وہ رر رہا ہے، کرایوں کے لیے وہ رر رہا ہے۔ ہمیں بتائیں ہم لوگ کدھر جائیں؟ کون ٹھیک کرے گا؟ کون آ جائے؟ آپ بتائیں۔ کوئی بھی آئے، بے شک لوگ کہتے ہیں عمران خان غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی ہمارے طرف سے نون لیگ کا ہے، PTI آئے، ہمارے ملک کو صحیح کرے۔ گزشتہ سال اچھا گزرا؟ کس لحاظ سے اچھا سال گزرا؟ دیکھیں، ہم اپنا خود ہی کماتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، ہم تو کسی سیاستدان کے لیے تو نہیں ہیں، یا کسی سیاستدان کے پاس تو نہیں بیٹھے ہوئے، یا وہ ہمیں لا کر نہیں دے رہا۔ جو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جو بھی ہے وہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، 2018 سے ملک نان اسٹیبلٹی رہا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کا دور حکومت رہا 2018 کے اندر، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کے سامنے تھے کیا حالات ہے، 1 کروڑ نوکری، ٹھیک ہے، اس طرح وہ کہتے رہے، نعرے مارتے رہے کہ 1.5 کروڑ مکان دیں گے، ٹھیک ہے، یہ سارے دورے کے دورے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو باقی رہی بات ابھی 2000 دیکھ لیں، اب 24 آ گیا، گورنمنٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، نواز شہباز شریف صاحب ہیں جو ہمارے وزیر اعظم، انہوں نے بھی تو یہ تو صرف عوام کو صرف دھوکے میں ہی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کریں گے، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ صرف سیاستدان اپنے لیے کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی 2025 دیکھیں، کوئی اچھی نوید لے کے آیا، دیکھیں کیا کرتے ہیں آگے۔ میں اصل پتہ ہے کہ جب سے ہم نے اور سنبھالا تو میں نون لیگ کو جو ہے نا سپورٹ کرتا آ رہا ہوں۔ ہمارے بڑے اکثر ہمیں یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ یار نون لیگ جو ہے نا ان کو ووٹ دیتے ہیں ہم، تو ہم بھی آگے سے ان کو ووٹ پول کرتے تھے، پر جب ہم نے خود ہوش سنبھالا پھر ہمیں پتہ لگا کہ یار یہ سیاست کیا چیز ہے۔ جب ہمیں سامنے لگے تو اب ہم نے دیکھا تو یار کہ یہ کیا سیاستدان کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے، تو تب دیکھا تو پھر میں نے ایک ذہن بدلا، پھر دیکھا یہ خان نے ایک آواز اٹھائی، ٹھیک ہے، یہ جب اس نے کہا جی کہ عمران خان، پھر ہم نے جو ہے نا پھر میں نے ذہن بدلا، پھر میں نے خان کو ووٹ پول دیا، دیکھا تاکہ وہ نیا چہرہ، ہم تو نہیں چہرے دیکھتے رہے، زرداری ہو گیا، نواز شریف، ان کے تو چہرے بدلتے رہتے ہیں، یہ آتے رہتے ہیں، 5 سال ایک لگاتا ہے، پھر دوسرے کہتا ہے جی 5 سال اس کا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی انہوں نے جو ہے نا وہ بانٹا ہوتا ہے کہ 5 سال تیرے ہیں، اگلے 5 سال تیرے ہیں۔ تو میں نے ایک ذہن بدلا، میں نے کہا خان کو ووٹ دے کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس ملک کے اندر کیا مطلب نیا ہوتا ہے۔ آخر اس نے تو کہا تھا خان نے، اس بارے میں بڑی کوشش کی اس ملک کو لے کے چلنے کی آگے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام جو سے ہیں توقع یہی رکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو، معاشی طور پہ بہتر ہو، ایٹمی طور پہ ہم مستحکم ہوں، لیکن ساری بات اس وقت ہے جس سے ہم متحد ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں نے اس سال کو جو سے اچھی طریقے سے منائیں، اور جو جہاں تک مہنگائی کا اور اس کا تعلق ہے وہ پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں ایشو نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو کمپیئر کریں دوسرے ممالک سے تو ہماری اکنامی اس سے بہتر ہے، اور پچھلے سال سے بھی بہتر ہے، انشاءاللہ اور بہتر ہوگی، کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اور جو بھی چیزیں اگر کمپیئر کریں 4 سال سے 5 سال سے پہلے تو اتنی ہے، اس سے کم ہی ہوں گی، زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ ایوری جو سی چیز ہے اس کے اصل میں بات یہ ہے کہ ڈالر ایک جگہ پہ مستحکم ہے، یہ بڑی بات ہے، جو سی وہ ہے اپنا آپ کی ٹریڈ وہ بڑھ رہی ہے، تو میں تو توقع رکھتا ہوں اگر یہ سیزن رہا تو ہم بہت اچھے کامیابی آتے ہیں۔ براہ راست عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا؟ عوام آہستہ آہستہ ملے گا بھائی، رات کو اگر آپ رات کو سوئیں اور صبح کو کہیں کہ یہ ہماری قسمت بدلی ہو، ایسا نہیں، پوری عمر کو میری اس وقت عمر 70 سال ہے، میں نے جہاں سے دیکھا ہے لیبیا کا بھی ہے نا، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ہماری جیب میں پیسے ہوتے ہیں، روٹی نہیں ملتی تھی ہمیں، ہم بھوکے مر رہے تھے، اور صرف اس وجہ سے کہ اندر سے مار پڑی تھی۔
अगर लोगों ने ये नहीं देखा कि मुल्क में जो से वो आती है, क्या कहते हैं, वो लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं, अगर आपको हमारे बच्चों को नहीं पता, ना ही हमारी आवाम को पता है कि सैंक्शन होती क्या चीज़ है, जिस मुल्क में लगती है वो जाके पूछे, इराक़ से पता करे, लीबिया से पता करे, ये जो से अपना हमारे लबनान में जो हो रही है, या जो गज़ा में जो गज़ा सूरत में जो हो रही है, आप वहाँ पे तवक्का करें, वहाँ पे रोटी भी नहीं मिल रही। और वहाँ पे वो लोग थे जो से ना इतनी याशी में थे, मैंने अपनी आंखों में देखा 70 से लेके 81 तक वहाँ पे लोग याशी कर रहे थे। कज़ाफ़ी को उन्होंने मरवाया है सिर्फ आलमी ताकतों ने। तो खुदा ना करे कि हमारे मुल्क में इस तरह की हमारी आलमी ताकतें जो से ना ये ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हमारी आवाम जो से ना भूखे मत। किससे उम्मीद है, कौन से सियासतदान आपका फेवरेट है? PTI PTI इमरान खान। सिस्टम में तब्दीली तब भी आएगी जब अदारे मजबूत होंगे। हर अदारा अपना काम करेगा, किसी और का काम वो नहीं करेगा। उस वक्त जाके सिस्टम चेंज होता है जब हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी समझे और उसको पूरा करने की कोशिश करे, ना कि दूसरों अदारों के अंदर जाके इन्वॉल्वमेंट करे। देखिए जी, अभी जो हालात जा रहे हैं फ़िलहाल तो कोई भी खुशी की कोई लहर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम हमारे सियासतदान को जो आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी तो हम गरीबों के ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर कोई नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को देखें, अपने आप को ठीक करें, उसके बाद हमारा मुल्क ठीक करें। जब तक वो ठीक नहीं होंगे, हम ठीक नहीं होंगे, तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा। माशी तो मुश्किल ही लग रहे हैं हालात, क्योंकि कोई भी माहिर माशियात तो हुकूमत में बैठा हुआ नहीं है और कोई आपको निशानी भी नहीं नज़र आ रही कि किसी जगह से कोई बेहतरी की उम्मीद हो। तो सियासी की इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि बेहतर हो, अल्लाह करे बेहतर हो। बेहतर नहीं होगा तो आगे हालात बहुत ख़राब है। आगे हालात बहुत ख़राब है। क्या समझते हो कौन सा ऐसा लीडर या सियासतदान है जो है वो आके फिर इस मुल्क को माशी तौर पर भी मुस्तहकम कर सकता है? उस सियासतदान जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, तो सबको, सब इदारों को, सब जो हमारे बाइख्तियार लोग हैं उनको चाहिए कि अवाम की राय का एहतराम करें। अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत जमहूर से है, तो फिर जमहूर की राय का एहतराम करना चाहिए। जो भी है वो चाहे मतलब इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, जिसको अवाम मुंतखब करते हैं उसको मैंडेट देना चाहिए। भाई उम्मीदें तो हम खो बैठे हैं, सच्ची बताएं तो हर बंदा इस टाइम कारोबार के हालात इतने बुरे हैं। पता नहीं, ये कह रहे हुकूमत कह रही है कि जी महंगाई कम होगी, किधर से कम हुई है? पेट्रोल उतना ही है, आलू टमाटर लेने जाएँ 300 रुपये किलो है। कस्टमर हमारे पास, पूरी दुकान दिखाएं, एक भी कस्टमर आया तो बताएं आप, पूरी मार्केट में आपको कस्टमर यहाँ पे नज़र ही नहीं आएगा। इतने के हालात ख़राब हो गए हैं। इनको चाहिए, हम ये नहीं कहते ये आए वो आए, जो भी आए पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारी मैशियत के लिए अच्छा हो। तो हम ये नहीं कहते कोई भी पार्टी वाला है, जो भी आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा हो कि उसको साथ लेके चलें और सबका बराबर लेके चलें इनको। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा 24 भी अच्छा गुजरा और ये भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। उम्मीद करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कि ये भी साल हमारे लिए अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये है कि ये जो हमारे साथ ये कंटोनमेंट वाले ये इधर मुल्क का माशी तौर पर मुस्तहकम होगा इंशाल्लाह जी, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो अच्छी सुबह की उम्मीद से हम हमेशा इस उठते हैं कि सुबह इंशाल्लाह अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। तो अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह पे अपना तकवा करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये 2025 जो है ना, ये हमारे लिए बहुत बेहतर साल होगा। बाकी तो पिछले साल जो गुजर गए हैं उनके बारे में अब मतलब हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 2025 जो है ना वो आपके लिए, हमारे लिए सब बेहतर होगा। अल्लाह से दुआ भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो मुल्क की जो सियासी निज़ाम है वो भी बेहतरी की तरफ जाए, और हमारी दुआ है कि जो पाकिस्तान की माशी हालत है वो भी बेहतरी की तरफ जाए। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान इस तरह तरक्की करेगा 2025 में, उम्मीद है। और सियासत में देखा जाए, सियासत की वजह से मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। जैसे नून लीग और PTI के अपन ताकड़ा जो लगा हुआ है, बड़ा ख़राब जा रहा है। ये धरनों हो रहे हैं तो कारोबार का बड़ा कारोबार ख़राब होता है। बेहतर ये है धरनों की वजह से मुल्क के कारोबार में नुकसान ना दिया जाए, कारोबार बढ़ाएं, मुल्क को आसानी करें। और पाकिस्तान से बाहर लोग जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान के अंदर लोग आए बाहर से, ये मुल्क के बड़े बुरे हालात है। इससे अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। 2025 बहुत बेहतर है इंशाल्लाह। नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, अच्छा चलेगा मुल्क, अच्छा चलेगा मुल्क, अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। किस लिहाज से अच्छा चलेगा? अच्छा चलेगा, 2024 तो वैसे गुजर गया, अच्छा था या बुरा था तो वैसे गुजर गया। 2025 के लिए नया सोच बनाएंगे,
क्या सोच बनाएंगे जैसा कि मुल्क को तरक्की पर ले जाने का। आप बनाएंगे सोच? हाँ हम बनाएंगे सारे, हम ये मुल्क हम बनाते हैं ना, अवाम बनाते हैं। हाँ हम बनाएंगे, सोच करेंगे ना। अवाम की राय आपने जानी। साल 2025 से काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं कि साल 2025 में सियासी जो कशीदगी है वो कम होगी और इसके साथ साथ माशी जो हालात है वो बेहतर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका ये कहना था कि पिछले जिस तरह साल गुजरे हैं इसी तरह साल 2025 भी गुजर जाएगा। तो रावलपिंडी की आवाम की राय आपने जानी। नाज़रीन अभी रुख करते हैं पाकिस्तान की किसी और शहर का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। आप देख रहे हैं कौम की सोच। 2024 गुजर चुका है, 2025 शुरू हो गया है। हम नौजवानों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 के वाले से वो कितना को पुर उम्मीद हैं। 2025 नौजवानों के लिए कैसा होगा। 2024 गुजर गया, अच्छी बुरी यादें साथ अपने ले गया, लेकिन 2025 के वाले से वो क्या कहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं और 2024 की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 2025 में नहीं होनी चाहिए। तो तब हम आगे बढ़ सकते हैं, नौजवानों से बात करेंगे। हम इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क का सरमाया है और आगे जाकर उन्हें मुल्क की खिदमत करनी है, इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुरतुलैन है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ बेम्स की ग्रेजुएट। अच्छा, क्या प्लान बना के रखा फ्यूचर में? आप क्या आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं? टारगेट तो ये है कि सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पास्ट में या 2024 में हम नहीं अचीव कर सके और एक नए जज्बे के साथ 2025 में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये साल बहुत अच्छा गुजरे। जिन चीज़ों की कमी रह गई थी 2024 में और उम्मीद करते हैं कि वो 25 में हम कंप्लीट कर सकें। कुछ रेजोल्यूशंस हमने रखी हैं कि इस बार हमने पहले से ज़्यादा मोटिवेट होना है और अपनी स्टडी को ज़्यादा कंटिन्यू करना है और साथ साथ थोड़ा सा सोशल भी होना है और इस माशरे में भी एक अहम किरदार अपना अदा करना है बाय गिविंग आवर फुल एफर्ट्स। और उम्मीद है कि अच्छा साल गुजरेगा ये। फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत मेहनत करेंगे और जितनी मेहनत की जा सके उतनी मेहनत की जाएगी। लेकिन उम्मीद तो यही है, बहुत अच्छे की उम्मीद है। इंशाल्लाह पार्ट टाइम हमें अपनी फ़ील्ड के लिहाज से प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन है तो हमें मेडिसिन की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और जो मेडिसिन है उनमें खाली स्टडी बेस नहीं, इसमें प्रैक्टिकल बेस जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सीखनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ हमें स्टडी में भी काफ़ी हद तक मेहनत कर रही है और हमारी जो इंडस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप्स होती हैं उसके हवाले से हमें विज़िट भी करवाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम काफ़ी मेहनत करेंगे। अभी तो फर्स्ट प्रोफ है तो इंशाल्लाह फिफ्थ प्रोफ तक हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे। उम्मीद है कि आप इन फ्यूचर में पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, बड़ा नाम पैदा करेंगे। चलिए अब हमें ये बताएं कि 2024 कैसा गुजरा आपका? 2024 काफ़ी थोड़ा सा अच्छा गुजरा है, इतना भी बुरा नहीं था। हाँ, क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं, काफ़ी उसमें हुक्मरान हमारे इधर उधर धोखेबाजी सबके साथ हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2025 में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तरक्की का राज यही है कि अगर सब चीज़ों को एक साथ लेकर चला जाए तो फिर मुल्क तरक्की कर सकता है। और अगर आवाम की तरक्की चाहते हैं तो फिर तो पुरअमन और पीस ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो हमारे अगर हम रोड्स पे निकल आएँ तो वार्डन नहीं जान छोड़ते हमारी, ठीक है, कि 18 साल से कम उम्र बच्चे का आईडी कार्ड नहीं बन सकता। अब लाइफ एवरेज ही कम हो चुकी है तो इनको चाहिए कि ये 14 साल के बच्चे का भी आईडी कार्ड बनाएं, क्योंकि 10 साल का बच्चा भी बाइक चला रहा है इस टाइम और लाइफ एवरेज कम होने की वजह से 50 साल से ऊपर वाला बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। 2024 अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे इंसान को रहना पड़ता है, बहुत अच्छा गुजरा है। देखें सबसे पहले तो ये कि 2025 आप कह रहे हैं ना महंगाई है या ये है, तो वो ये चीज़ें तो इन सब साथ साथ चलती हैं, लेकिन जब तक हम अंदर से खुद को नहीं, तब हर एक एक फ़र्द अगर खुद को नहीं चेंज करेगा तो हम लोग चेंज नहीं हो सकते। अगर साथ साथ हर एक अभी से ये अपना रेजोल्यूशन सेट करे कि हमने 2025 में ये करना है, अपने टारगेट्स अचीव करें, तो मेरे ख्याल से तो मुल्क बहुत अच्छे जा सकता है। और इसके अलावा हम अपने दीन को साथ लेके चलें, ये नहीं कि हम टोटली लिबरल हो जाएं या बिल्कुल टोटल जो है वो दीन से हट जाएं। ये दोनों चीज़ें, अल्लाह के नबी का फरमान है कि बाज़ार में रह के आप जो है वो ईमान लेके आओ, ईमान पे कायम रहो। तो इस चीज़ को हमें ज़रा बॉदर करना चाहिए, तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, एक दिन ज़रूर करेगा। एज ए स्टूडेंट्स आप किसको, आपकी लाइफ में कौन ऐसा रोल मॉडल है जो आप समझते हैं कि इसको जानने के बाद बड़ा कुछ हम सीखते हैं, हम अपनी लाइफ के हवाले से बड़ा कुछ लर्न करते हैं? कोई ऐसा रोल मॉडल भी है जो जिसको आप फॉलो करते हैं? इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसके अलावा पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं जो परेशान है मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, उनके लिए आपका क्या पैगाम?
اللہ پاک نے ہمارے لیے جو لکھا ہوتا ہے وہ بہت بہتر لکھا ہوتا ہے. ایک سچ ٹائم پہ جا کے ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے وہ بہت اچھا تھا, کیونکہ اللہ پاک 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پاکستان ہے تو اس کا مطلب, جب پاکستان کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کنٹری ہے, تو ہم پھر اپنا جواب بھی مسلمانوں کی طرح دیں گے کہ اللہ پہ یقین رکھیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں جینا تو ہے ہر حال میں, تو کیوں نہ ہم پھر ہنس کے خوشی سے انجوائے کر کے جئیں. کیا ٹارگٹس بنائے ہوئے ہیں جو آپ ان فیوچر میں کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی کے لیے ہم لوگ اپنے ایگزامینیشنز جو ہیں ان پہ ہی فوکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ہماری ڈگری بہت پریکٹیکل ہے, تو اس کے لیے وی جسٹ اٹینڈ دی سیمینارز اینڈ ایوری تھنگ جسٹ ٹو گین مور نالج اوور دی ایئرس, تاکہ آگے یہ چیز ہمیں اور ہیلپ کرے. اس کو میڈیسن کے ساتھ لنک کرتے ہیں سارا کچھ. تو زیادہ ہمارا گول یہی ہے کہ ہم اب کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ میں تو جتنے بھی ہم پیشنٹس کو اپنے لائف ٹائم میں ٹریٹ کر سکتے ہیں اور صحیح ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, جتنا اپنی فیلڈ کو جسٹس کر سکتے ہیں جتنا اس کے ساتھ, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم تھرو آؤٹ لائف اس کو صحیح طریقے سے اپنا فرض نبھائیں اور اپنی فیلڈ میں ایکسیل کریں, ہر چیز کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں یوز کر سکیں. پاکستان کی دعا تو یہی ہے کہ ابھی تک جو حالات ہیں گورنمنٹ کے اور جتنے بھی بہت زیادہ پولیٹیکل ویو پہ, خیر میں اب نہیں زیادہ اس کو بائسنس اس میں شو کروں گی, بٹ یہی ہے کہ اگر کچھ اس میں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اگر بات کریں تو وہ اس میں تو دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ ان ادر سیکٹرز ایز ویل, ایجوکیشن میں بھی. تو اگر اس کی میں کچھ بہتری آ جاتی ہے, اگر اسٹوڈنٹ زیادہ اسکل کی طرف بھی ان کو اسکل سکھائے جاتے ہیں, تو آئی نو دیٹ دے کین ڈو اے لاٹ. دے ہیو دس ہول نیشن ہیز ٹو مچ پوٹینشیل, بٹ صرف اس کو یوز کرنا آنا چاہیے. تو آئی ہوپ فلی کہ اس سال میں بھی کافی اسٹوڈنٹس جو ہوں گے وہ اس میں آگے جا سکتے ہیں. 2024 آپ پاکستان کا ثاثہ ہیں, ملک کا ثاثہ ہیں, نوجوان ہیں, آگے جا کے پاکستان کے لیے سرو کرنا ہے, بڑے بڑے عہدوں پر آپ نے جانا ہے. تو آپ 2024 کی ایسی کوئی تلخ یاد ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, جو پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہو, جو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے 2024 میں, 2025 میں وہ نہ ہو؟ کیا ہے کوئی ایسی یادیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ بہت ریسنٹلی آپ مارکس کا دیکھیں, ایم ڈی کیٹ کو دیکھیں, ایگزامینیشن میں جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے, آئی تھنک وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ لوگ کتنا اسٹرگل کرتے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, پھر بعد میں پیپرز لیک ہو رہے ہیں, پھر ان کے نمبرز جو ہیں وہ ان کو اس میں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا, تو وہ چیزیں فیس کرتے ہیں. اور اس میں اگر بہتری آ جائے تو بھی بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا, ڈاکٹرس کا تو فیوچر ایک قسم کا سیو ہی ہوتا ہے, لیکن ہمارے بہت سے ایسی ڈگریز ہیں جس میں صرف رٹا سسٹم ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ایجوکیشن پاکستانی سرکار کو, گورنمنٹ کو ایسی ایجوکیشن لانی جو ٹیکنیکلی ایجوکیشن ہو؟ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس سولوشن کہ ایسا بھی ہونا چاہیے؟ بالکل ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی ایجوکیشن کون کون سی ہونی چاہیے؟ فار ایگزامپل کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو وہ اپنی کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے اب جہاں پہ اگر آپ فیملیز کو دیکھیں جن کے جنریشنل کوئی ویلتھ ہے یا کوئی بزنس ہے, سے وہ آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں, ان کا لک ہے. بٹ سم فیملیز وہ اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاتی ہے کیونکہ ان کو کچھ آگے پاس کرنے کے لیے سکسیسرز وہ نہیں ہوتے, تو اس لیے تو وہ پڑھتے ہیں کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر لیٹس سے کہ مارکس کے ہم لوگوں نے ریس لگائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے رٹنے چیزوں کو تاکہ نمبر لے لیں, تو ایجوکیشن میں یہی چینج آ سکتی ہے کہ وہ ہر بچے کے کانسیپٹس کو ویلیو دیں, ہر بچے کے جو کانسیپٹس ہیں انہیں کو اسٹرانگ کریں. کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کر کے یونیورسٹیز میں آتے ہیں, ان سے وہ اسی سسٹم کے اندر اتنا زیادہ وہ دباؤ ہوتا ہے ان کے اوپر کہ اس کو آگے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ایک دم کیونکہ چینج ہو جاتا ہے تو وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو ان کو چاہیے کہ انٹرمیڈیٹ میں بھی ایون اوبیسلی جو پنجاب بورڈ ہے یا پھر بورڈ آف پاکستان جو ایجوکیشن ہے ان کو ہی کرنا چاہیے. اس میں 2025 کو لے کے بہت امید ہے ان سچ اے وے کہ ہمارا بیکاز بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت ساری انوویشنز آ رہی ہیں ایجوکیشن سسٹم میں, اور اس چیز پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور اس چیز کے ان سچ اے وے کہ یہاں پہ کام پہلے جو تھا وہ گریڈنگ سسٹم نہیں تھا, جسٹ راٹ میمورائزیشن تھی اور چیزوں کو لے کے چلا جاتا تھا کہ جسٹ مارکس کی ایک ریس تھی. بٹ اب جو ہے دا گورنمنٹ ہیز آلسو پونڈرڈ آن اٹ اینڈ ان سچ اے وے کہ اب وہ جو ہے گریڈنگ سسٹم آ گیا ہے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایویلویٹ کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اور جو پور چلڈرن ہیں ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کر رہی ہے, اپرچونیٹیز دے رہی ہے آگے آنے کی, ڈفرینٹ اسکالرشپس دے رہے ہیں. سو یہ چیزیں اور ڈفرینٹ بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ بچوں کو جو نہیں ایجوکیشن افورڈ کرتے ان کو وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. سو اس لیے میں جو ہے 2025 کو لے کے میں بہت زیادہ ایگر ہوں ان سچ اے وے کہ بہت کچھ ہوگا. نوجوانوں کا مستقبل ہے پاکستان میں؟
जी बिल्कुल, नौजवानों का मुस्तकबिल है, हम ही हैं, बिकॉज वी आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअली वी बीइंग द यूथ, हम ही इस चीज़ का फ्यूचर हैं। ये बात गलत है कि यहाँ पे नहीं है, असल में होता कुछ यूँ है, 2 से 3 इसमें चीज़ें हैं। हमारा जो स्टेटस, जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कुछ इस तरह का है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम को ले लें, हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बच्चे आते हैं, लेकिन जो है जैसे अभी इन्होंने बात की थी, पेपर लीक हो जाते हैं डिफरेंट, और जो है एक बच्चे को अगर उसने मेहनत की, उसे उसका जो है वो असल फल नहीं मिलता, इन सच अ वे कि पेपर्स जो है अब हर दफ़ा लीक हो जाते हैं। वो क्या है, जस्ट कुछ पैसों की मार पे वो लोग आगे चल जाते हैं जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं किया, लेकिन जो अपनी उम्मीदों के पहाड़ लेके आते हैं कि जी हमने इसमें बहुत एक्सेल करना है, वो कुछ नहीं कर पाते। सो ये जो है यहाँ पे लैकनेस है, लेकिन कुछ फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर उन्हीं के लिए है जो मेहनत करते हैं। हाँ जी, यहीं से अगर हम बात करें तो सिंध से प्रीवियस ईयर में अभी साल जो है जिसने CSS टॉप किया है, शी इज़ अ क्रिश्चन। यस, शी इज़ अ क्रिश्चन, और उसने CSS टॉप किया है बीइंग अ माइनॉरिटी। उसने एक सबक दिया है, हमारे पाकिस्तान में इक्वालिटी है, यहाँ पे जस्टिस भी है, बट ओनली फॉर दोज जो हु वर्क हार्ड। मेरे बहुत से ख्वाब हैं 2025 को लेके। मतलब सबसे पहले तो मैं अपने जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर मतलब मैं थोड़ा सा गौर करना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब मैं अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को थोड़ा इन्हेंस करना चाहती हूँ, अच्छे ग्रेड्स लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मतलब ये एजुकेशनल जो नीड्स है ना वो मतलब फुली फंडेड हो जाए, मतलब स्कॉलरशिप मिल जाए मुझे पूरी तरह से। दूसरी बात ये है कि मैं प्रैक्टिकली मतलब अपने प्रोफेशन को बहुत मतलब आगे लेके जाना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे अंदर मेरे मतलब फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, उनके हाथों में जादू होता है। हम लोग मेडिसिन यूज़ नहीं करते, हम लोग अपने हाथों के कमाल से पेशेंट को ठीक करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल भी सीखूँ और अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी गौर करूँ, ठीक है। 2025 के वाले से क्या कहेंगे? 2025 का साल पाकिस्तान के लिए और आपके लिए कैसा होगा? इंशाल्लाह होप सो। मतलब कह सकते हैं, हम कहते हैं ना फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही हो, मेरा तो यही है पर्सपेक्टिव के। 2024 में ऐसा क्या है जिसको आप समझते हैं कि जिससे आपने सीखा, उसको अपनी लाइफ में भी आपने अडोप्ट आगे करेंगी, वो आगे गलती नहीं करेंगी? लोगों के लिए इसमें क्या पैगाम होगा? पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा एक मसला जो आप समझते हैं 2024 में हुआ तो 2025 में नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 2024 में क्या चीज़ सीखी। मैंने 2024 में एक बहुत अच्छा सबक सीखा है। मेरा 1 साल का स्टडी गैप है, ठीक है। मतलब मैंने इंटरमीडिएट के बाद 1 साल मैं घर रही हूँ। मैंने आइल्स वगैरह की तैयारी की। मेरा ये था कि मैं बाहर जाऊँ, मतलब MBBS के लिए मैं बाहर जाऊँ, लेकिन क्या है कि मतलब कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, मैं नहीं जा सकी। मतलब मैंने इसमें यह सीखा है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ आई हूँ, मैं DPT कर रही हूँ, आई एम फुली सेटिस्फाइड। ये अनसर्टेन था कि मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कहीं पढ़ूँगी या जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं ना मिल रही तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में एक हिकमत होती है इसी ये। और बाकी मैं अब आपको हुकूमत के बारे में एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो भी नई गवर्नमेंट आती है ना, वो जो पिछली गवर्नमेंट है ना उसको क्रिटिसाइज़ करती है। मतलब आप जो मर्ज़ी इंटरव्यू सुन लें, कोई हुकूमत पिछली गुजर के गई है, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, आई एम नॉट द साइड ऑफ नून लीग और PTI, ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि देखें आपकी एक पोस्ट है, आप आए हैं, अब मतलब बैठे हैं एक सीट पे, अल्लाह ताला ने आपको हाकमियत की सीट पे बिठाया है। आपको क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बिठाया गया यहाँ पे कि आप जो आपका पिछला बंदा करके गया हुकूमत, आप उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं आए। आप अपना काम करें। आपके क्या रूल्स हैं जो मतलब इस्लामिक बाउंड्रीज़ में और इंटरनेशनली जो चीज़ें हैं ना, आप उनको लेके चलें। आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आए हैं। तो मैं चाहती हूँ ये क्रिटिसाइज़ करना ख़त्म कर दें। मतलब एक दूसरे को बैठ के अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ये चीज़ बहुत बुरी है। 2025 शुरू हो चुका है, खुश हैं ज़िंदगी में आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फुल सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से। पाकिस्तान में जो फैलती हुई मायूसी है उस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग नौजवान कह रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी मसला है, वो भी मसला है, आप अपनी सर्टिफिकेशन किस तरह बताएंगी? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि मसले होते हैं, सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन आपको माइंडफुल होना चाहिए। आप आएँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ और बिल्कुल माइंडफुल हो जाएं। जब आप माइंडफुल हो जाएंगे आपको तो मसले नज़र ही नहीं आने। लाइफ बहुत अच्छी है, लोग मायूस हैं, पता नहीं क्यों है।
اتنی اچھی لائف ہے, اچھی لائف کی طرف آئیں نا یار, اسپرچویلٹی کی طرف آئیں. کیوں مایوس ہو؟ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر دن جینا چاہیے, مشکلات آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں, مسکرا کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. جی جی بالکل. اسی کو 2024 کے اندر کون کون سی ایسی مشکلات ہیں جس کا مسکرا کے مقابلہ کیا؟ پہلی فرسٹ آف آل تو یہ تھی کہ میں ہاسٹلائزڈ ہوں اور فیملی سے دور آنا. ٹو بی آنیسٹ میں کبھی فیملی سے دور نہیں رہی, تو یہ تھوڑا سا ہیکٹک تھا. بٹ جب میں نے خود کو اتنا الائن کر لیا کہ جناب ٹھیک ہے یہ لائف کے ساتھ ہے, اب مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. تو اسی طرح ہر فیز کے ساتھ آپ کو خود کو چینج کرنا چاہیے. خواب کیا ہے آپ کے, خواب کیا ہے, خواب کیا ہے 2025 میں کا خواب کیا ہے, 2025 میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بہت سے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اسکلز سیکھنی ہے, مور اوور مجھے این جی اوز میں بھی کام کرنا ہے. مجھے لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ یار آپ مائنڈ فلنس کی طرف, مجھے مایوسی ختم کرنی ہے لوگوں سے. مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری لائف دی ہے, کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ آپ ایک ایک چیز پہ غور کرو. تو میرا نہیں خیال مایوسی کے لیے ایک ٹائم بھی ملتا ہے آپ کو. پیغام کوئی دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. سو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مایوسی چھوڑیں, آپ اسپرچویلٹی کی طرف آئیں, مائنڈ فل ہو جائیں. اور جب آپ یقین کریں مائنڈ فل ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال آپ کبھی مایوس ہوں گے زندگی میں. ہر مومنٹ کو انجوائے کرو. 2025 کے لیے پورا امید ہے نا, زبردست سال انشاءاللہ. پاکستان کے لیے کیسا ہے؟ جی جی پاکستان ہے کہ لوگوں کو اپنی لائف میں چینجنگ کرنی. پاکستان کے لیے کیسا دیکھتے ہیں 2025؟ ہر سال تو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, ہر سال لوگ پریشانیاں ان کی بڑھتی ہیں, خودکشیاں بڑھ رہی ہیں پاکستان کے اندر, تو کیا کہیں گے 2025 کے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر کسی کو نا خود پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر خود پہ فوکس کریں گے تو پاکستان میں مسئلے ہی نہیں نظر آئیں گے. بس مائنڈ فل ہو جاؤ. جی جیسا کہ آپ نے نوجوانوں کی گفتگو سنی, اسٹوڈنٹس تھے, پاکستان کا اثاثہ ہیں, آگے جا کے بڑے عہدوں پر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی بہتری تبھی ہو سکتی ہے 2025 کے اندر جب سیاستدان ایک ہو جائیں, اتفاق پیدا کر لیں, تنقید کم کریں. اگر تنقید کرنی ہے تو تنقید برائے تعمیر کرنی چاہیے, اور ایجوکیشن ریفارمز کے اندر پاکستان کو بہتری لانا ہوگی, ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہتری لانا ہوگی. اسٹوڈنٹس نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹڈی جو چل رہی ہے 10 سال 15 سال پرانی چل رہی ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی, کوئی سلیبس میں چینجنگ نہیں آ رہی, اس کے اندر بہتری لانی ہوگی. کوئی جاپان اور چائنا کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ ان کی ترقی کا کیا راز ہے. تو اس قسم کی انہوں نے کافی اہم ٹپس دیے ہیں. اور ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا جس نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ 14 سال کی عمر میں بن جانا چاہیے, کیونکہ 18 سال بہت زیادہ ایج ہوتی ہے, کیونکہ ایوریج عمر کم ہے. ایک اچھا سلوشن اس نے دیا ہے. یقینی طور پر حکومت تک یہ بات جائے گی, سوچے گی کہ کیا کرنا ہے. اب بہرحال یہ اسٹوڈنٹس کی اور نوجوانوں کی رائے تھی. اب اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ 2025 پاکستان کے لیے کیسا ہوگا, آپ کے لیے کیسا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے شہریوں سے 2024 جو ہے وہ کیسا ان کا گزرا ہے, اور 2025 میں کیا توقعات ہیں. ہم جانیں گے نوجوانوں سے, شہریوں سے کہ ان کی کیا رائے ہے, وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک بزرگ شہری موجود ہے, ان سے جانیں گے. سر بتائیے گا 2024 آپ کا کیسا گزرا ہے اور 2025 سے کیا توقعات؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے, اور امید ہے کہ آگے بھی اچھا ہی گزرے گا 2025. مہنگائی, بے روزگاری تھی, اور یوٹیلٹی بل جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ آئے ہیں 2024 میں. تو کیا سمجھتے ہیں 2025 میں کیا توقعات ہیں؟ 2024 تو جو ہے وہ جیسے تیسے گزر ہی گیا. حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے, کچھ نہ کچھ غریب عوام کا سوچنا چاہیے انہیں. بلوں نے مت ماری ہوئی ہے, مہنگائی اتنی ہے. یہ نون لیگ کہہ رہی ہے مہنگائی کم ہوئی ہے, کہاں پر مہنگائی کم ہوئی ہے؟ دکھائے کوئی آ کے, مارکیٹ کا سروے کرے کوئی, کہاں مہنگائی کم ہوئی. عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, سیاستدانوں نے. 2024 بس گزر گیا ہے, لیکن گزرنے کے لائق نہیں تھا. وہ بہت دکھی گزرا ہے. دوستوں نے دھوکے بوکھے دیے, منافق تھے کچھ لوگ, وہ چلے گئے. اللہ خیر کرے 2025 میں کیا کیسا گزرتا ہے. امید تو ہے اچھا گزرے گا, لیکن لگتا نہیں ہے. کل جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, لیکن لگتا نہیں ہے 2025 اچھا گزرے گا. 2024 اچھا گزرا ہے, انشاءاللہ 2025 بھی اچھا گزرے گا. اور جو مہنگائی کی آپ بات کریں, یہ سبھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ مہنگائی کا سب عام ایسے ہی رولا ڈال رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں مہنگائی نہیں ہے؟ مہنگائی نہیں ہے, بالکل ٹھیک چل رہا ہے. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بل بالکل ٹھیک آ رہے ہیں. بالکل آ رہے, صحیح آ رہے ہیں. آپ کے مطابق 2024 آپ کا بہت اچھا گزرا ہے؟ ہاں جی بہت اچھا گزرا ہے. 2025 میں کوئی خواہش, کوئی توقعات جو آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے؟ 2025 میں انشاءاللہ خواہش ہے, ہوگی پوری. بتانا چاہیں گے کیا خواہش ہے, کیا سوچ ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ جی عمرے پہ جا رہا ہوں, وہ خواہش تھی, وہ اللہ 2025 میں روزے میں پوری کر رہا ہے. پہلے صحیح تھا, ابھی بیچ میں کام ٹھپ ہوگا. 2025 میں کیا توقعات ہیں؟
2025 में तो बस यूँ समझो बस लेके आ रहा है, बेच रहा है, जो आ रहा है वही सामान लेके आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं। अगर अपने लिहाज से पूछा जाए तो बेहतरीन था, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से जो है ना ये साल बड़ा मुश्किल रहा है। तो उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह अगला साल हमारा बड़ा अच्छा गुजरेगा। क्या तवक्कुआत हैं और कैसे कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो 2025 में पूरी करना चाहते हैं? ख्वाहिश ये है कि मैं उम्र पे जाना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो दुआ करें कि इंशाल्लाह मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँ। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा गुजरा साल? महंगाई के हवाले से तो हर जो नया साल आ रहा है वो पिछले साल से ज़रा मुश्किल ही है, तो लेकिन एंड में जाते जाते कुछ बेहतरी हुई थी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल बेहतर होगा। सियासी हवाले से क्या कहेंगे? सियासी हवाले से यही है कि बस मुश्किल हालात लग रहे हैं पीटीआई के लिए, जो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएंगे। 2024 ठीक गुजर गया, महंगाई का ज़ोर था, बहुत ज़्यादा ज़ोर था। देखते हैं अब 2025 में क्या होता है, लेकिन 2024 बहुत 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 हमारे लिए नुकसानदार रहा है। 2025 देखते हैं हमारे लिए क्या खुशहाइन लेकर आता है हमारे लिए। कोई तवक्कुआत ने ख्वाहिशात क्या कहना चाहेंगे? तवक्कुआत क्या होंगी, 2024 में है वही यहीं 2025 में भी होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। यानी मायूस नज़र आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमत से हम बहुत मायूस हैं। क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या ऐसा करना चाहिए कि अवाम उनसे जो है वो खुश हो जाए? देखो ना, 2025 में हमें हैप्पी न्यू ईयर दिया उन्होंने। पहले तो पेट्रोल बढ़ा दिया उन्होंने, डीजल बढ़ा दी, हर चीज़ बढ़ा दी। उसके मोबाइल देखिए आप, गैस बढ़ गया। ठीक है, इस तरह महंगाई में अब कैसे कोई खुशहाल रह सकता है? तो इसलिए ये हमें कोई रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। तवक्को तो यही है कि हुकूमत जो है वो हालात को बेहतर करेगी और महंगाई थोड़ी कम होगी। लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत कोई बेहतर करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। खैंचा खांची में पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे की टांगें खींचने को लगे हुए हैं और आवाम के लिए कोई सोच ही नहीं रहे। आवाम अपने गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है, दिन ब दिन तंग हो रही है, ज़िंदगी और तंग हो रही है। वो अपनी खैंचा खांची में पड़े हुए हैं, कभी उसकी टांगें खींच, कभी उसकी टांगें खींच। जब तक ये आपस में इनके मुज़ाकरात मिल के बैठेंगे, तब तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं होगा? नहीं, बेहतर नहीं होगा, बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है, लेकिन ये जो हुकूमत के और अपोजिशन के मामला थे, इसकी वजह से गरीब जो आदमी है वो बहुत पिस के रह गया है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि ये आपस में बैठ के जो भी हैं इनके मामलात मुज़ाकरात करें और मुल्क को ना तरक्की की तरफ गामजन करें। 2025 को कैसा देख रहे हैं? देखिए अभी तो आज 2 जनवरी है, अभी आगे देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई महीने कोई गुजरेंगे तो पता चलेगा ना कि 2025 हमारे लिए कैसा गुजर रहा है और हमारे लिए कैसा अच्छा है या नहीं अच्छा था। क्या समझते हैं जब तक महीने गुजरेंगे नया साल आ जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बात तो वही आ गई ना, जनवरी चल रही है, 11 महीने गुजरेंगे तो फिर आएगी 2026। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे जी, और ये दुश्मनों के शर से बचाए इसको। हम सब भाई हैं, सब आपस में इत्तफाक मोहब्बत से रहें। मेरे समझण दे विच इहा ॻाल्हि है भई महंगाई कंट्रोल करे नहीं। महंगाई हद तो ज़्यादा वधदी वेंदी, जो दिहाड़ी वधदी वेंदी है। ये रिक्शा ड्राइवर है, कम अज कम पूरा महीना लंघ गया पिछला 12वां, कोई कारोबार का नहीं, हाले तक सवारी नहीं चाहती। तू डेढ़ गिनो 1 बजदी पई है, शाम को क्या घिन के वञूं बालन किते, कोई समझ ही नहीं आती साकू इस महंगाई दे विच क्या बन सी। अगु 2025 साकू उम्मीद कहे नहीं, आखूँ भाई एक नवाज शरीफ होरां ते उम्मीद ना, सारे तो उम्मीद कहे नहीं। ये सिर्फ अल्लाह ते उम्मीद है, जेड़ा अल्लाह पाक लई आंदा गिद्दी आंदा है, गुजारा चलता आंदा है। सियासतदानों से किसी से कोई उम्मीद नहीं है। 2025 में क्या चाहते हैं, ऐसी क्या तब्दीली हो? कोई तो यही कहते हैं हमारा भाई रोज़गार चले, हमें रोज़ी मिले, हम बच्चों को खिलाएं, हमारा मुस्तकिल अच्छा बने, हम भी खुशहाल रहें, हमारे बच्चे भी खुशहाल रहें। हमारा यही है मुस्तकिल, और कुछ नहीं है। महंगाई कम हो। 2024 अगर मुल्क की बात करें तो सियासी तौर पर तो बड़ा मुश्किल रहा, अदम इस्तेहकाम रहा, इंतशार रहा। लेकिन 2025 से काफ़ी उम्मीदें, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मुल्की सतह पर देखें तो हुकूमत अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात करने जा रही है। उसके अलावा मईशत की बात करें तो मईशत बड़ी बेहतर होती जा रही है। तरसीलात ज़र जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, न्यूक्लियर प्लांट में इजाफ़ा हो रहा है। तो बड़ी अच्छी खबरें हैं, बड़े पुरुमीद हैं 2025 से कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये साल जो है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। सर बताइएगा, 2024 जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली के बिल, गैस के बिल, दीगर जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। तो क्या समझते हैं कि नए साल जो 2025 है इसमें चीज़ें कम करनी चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए? आप फील्ड में होते हैं, आप रिपोर्टिंग भी करते हैं। जनवरी 2024 में जो महंगाई थी
दिसंबर 2024 में महंगाई में वो कमी ज़रूर आई है, क्योंकि वो उस टाइम जो है वो 25-30% थी। अब जो आप देखेंगे तो सिंगल फिगर में जो है वो महंगाई भी आ गई है। बाकी जहाँ तक बिल और बिजली की बात रही तो यकीनन एक आम आदमी उससे बड़ा मुतासर था और वो मुतालबा करता है कि हुकूमत से 2025 के अंदर जो है वो बिजली सस्ती की जाए, गैस सस्ती की जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, जो बाकी चीज़ें हैं वो सस्ती की जाएँ। उसके अलावा जो नौजवान हैं उनके लिए जो है वो बेहतरी के लिए सोचा जाए। जी, नेक ख्वाहिशात का इजहार है, अल्लाह के वलियों के दरबार पे आए हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बाकी मुल्क के जो हालात है वो बहुत डाउन जा रहे हैं। रिसेंटली अभी मैं 6 साल बाहर रह के आया हूँ सऊदी अरेबिया, उधर जॉब किया है, उधर छोड़ के आए कि पाकिस्तान अपने मुल्क में रहेंगे, अपना मुल्क है, इस पे तो हमारी जान भी कुर्बान है। पर जो इसके हालात देखते हैं, इकानमी देखते हैं तो वो ज़ीरो हो रही है। बच्चों का मुस्तकबिल जो है अच्छा नज़र नहीं आ रहा सर, इसलिए फिर उधर ही जाने का इरादा कर रहे हैं, मुल्क छोड़ने का। करेंसी बहुत लो है, बाहर के जो लोग हैं वो तो हमको अच्छा नहीं समझते, फिर भी क्या करें, ये मुल्क हमारा है, फिर क्या करें। बस दुआ है अल्लाह से, अल्लाह पाक बेहतर करे इस मुल्क का। देखें 2024 को अगर हम देखें और हम कंपेयर करें कि भी पिछला 2023 कैसा रहा, तो पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हर साल हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। हम 2023 हमने गुजारा, हमें लगा कि 2023 हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन तब 2024 में आए हमें लगा नहीं यार ये उससे ज़्यादा टफ था, 2023 सही था। आज भी हम देखें, हम सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी हम बात कर रहे होते हैं यार 2019-2018 तक दौर ठीक था, उसके बाद महंगाई बढ़ी। महंगाई ओवरऑल बढ़ती जा रही है, मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पर पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। लेकिन 2024 से हमें कुछ उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा थी कि गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो हमें था कि महंगाई जो है वो नीचे आएगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी। वो हुई भी, मतलब 1-2 रुपये नीचे की उन्होंने खुश किया आवाम को, लेकिन साथ ही 5-10 रुपये बढ़ा दिए। तो ये साल यही चलता रहा, बस सारा साल यही चला। आप देख लें ये यकम को भी उन्होंने 0.5 बढ़ा ही दिया, ना करते हुए भी बढ़ा ही दिया उन्होंने कि भाई न्यू ईयर का आप गिफ्ट लेते जाओ ना ज़रा साथ साथ। 2000 वैसे हालात के मुताबिक तो जैसा मैं देख रहा हूँ और जो मुझे नज़र आ रहा है 2024 में तो हालात की मजबूरी, लोगों की कमज़ोरियाँ, कारोबार की कमज़ोरियाँ, वो तो बहुत कुछ है। अभी अल्लाह खैर करे कि 2025 बखैरियत से और इंशाल्लाह हम सब और सारे पाकिस्तान को मुश्किलात और उससे बचाए। बाकी आगे देखते हैं कि आगे क्या गुजर रहा है। इंशाल्लाह 2025 के अच्छे की तो औकात है, और जो 2024 है उसमें वो बेरोज़गारी, नौजवान की जो इतनी तौलीफ महंगाई का दौर है इतना, और इतनी आजकल जो नस्ल है जो इतनी क्वालिफ़िकेशन के बाद भी 16-15 पढ़ लेती हैं, इतनी ग्रेजुएशन के बाद भी लोगों को बेरोज़गार नौकरी नहीं मिलती। जगह जगह लोग 500 पे 600 पे आजकल काम कर रहे हैं। बहुत महंगाई है, बिजली के बिल में इतना इजाफा, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं आजकल। अब देखें गैस का बिल है इतना, अब फ़ी पहले आता था 200 रुपये, अब 8-9 हज़ार रुपये फ़ी 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत महंगाई है, इस हुकूमत ने तो हमें बेड़ा हाल कर दी है, हम बहुत परेशान हैं। छोटे हमारे पहले माँ बाप कमाते थे, वालिद साहब कमाते थे, वालिदा कमाते थे, घर का निज़ाम चलता था। अब तो मतलब पूरे घर को कमाना पड़ता है, फिर भी घर की पूरी नहीं होती। मतलब इस हुकूमत ने तो हमें जीना महाल कर दिया। हिंदुस्तान के नौजवानों और शहरियों ने जो है वो 2024 को महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का साल करार दिया है। उम्मीद करते हैं कि 2025 जो है वो बेहतरी का साल हो, सियासी इस्तेकाम जो है उसमें बेहतर हो, और तमाम सूरत हाल जो थी मुल्तान की हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलजेब आकाश को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।